Hello friends, welcome back to your favorite channel जागो इंडिया जागो and I am Pradeep, आपके फेवरेट स्मॉल कैप फंड्स का कंपैरिजन रिव्यू एंड कंक्लूजन लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड एंड अकॉर्डिंग टू योर वोट्स, जो कि मैंने आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा और अपने चैनल पे भी पूछा था, तो आपके वोटिंग के बेस पर मैं टॉप 5 स्मॉल कैप को सिलेक्ट किया और इस वीडियो में आपके वोटिंग के जो टॉप 5 स्मॉल कैप हैं उसी का रिव्यू एंड कंपेयर मैं करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू कंपेयर टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स अकॉर्डिंग टू योर वोट्स। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से यू आई ऑलरेडी अपलोडेड top 4 large cap and top 4 mid cap funds. Link in description is available. And my next video regarding top 5 multi-cap funds for 2020. So friends, requesting you all subscribe and hit the bell icon for getting latest update. These funds getting top votes from your side, and these top 5 small caps are HDFC small cap, SBI small cap, L&T emerging business fund, and Nippon India small cap, and last one is Axis small cap fund. एक्सट्रीमली सॉरी उन व्यूवर्स के लिए जिनके फंड मैं इंक्लूड नहीं कर पाया इस वीडियो में, लेकिन प्रॉमिस टू यू माय व्यूवर्स आई विल रिव्यू योर रिकमेंडेड फंड एज सून एज पॉसिबल। सो कमेंट्स योर फंड्स नेम इन कमेंट्स बॉक्स। और जिस बेस पर और जिस फैक्टर्स पे मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है रिस्क एंड वोलेटिलिटी मेजर फैक्टर, सेकेंड वन इज मॉडर्न पोर्टफोलियो स्टैटिस्टिक्स, third one is return since launch, fourth one is total expense ratio, and fifth one is managers skills of these funds. फ्रेंड्स, मेरे हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको कुछ नए नए ट्रिक्स समझाऊंगा। सो रिक्वेस्टिंग यू ऑल डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल द एंड, बिकॉज यू हैव टू गेन योर नॉलेज अबाउट इन्वेस्टमेंट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। इन दिस वीडियो आई विल नॉट डिस्कस अबाउट basic data. I am going to cover all important fact and data in this video. After watching these comparing factors, you can easily get to know which fund is best for you. So let's start with risk and volatility factor. Friends, मैं प्रत्येक कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स एंड वर्ड को सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, तो प्लीज हर बात को ध्यान और केयरफुली अटेंशन दे। मैं जो भी डेटा यहाँ कंपेयर करूंगा वो 3 इयर्स के बेस पर लूंगा। मैं कभी भी क्वार्टरली बेस पर कंपेयर नहीं करता, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई भी फंड हो सकता है अच्छा रिटर्न दे दे और उसका रिव्यू देखकर आप इन्वेस्ट कर दे और यह गलत हो जाए। तो चलिए समझते हैं, और सबसे पहले ये समझते हैं कि शार्प रेशियो क्या है। व्हाट इज शार्प रेशियो? Sharpe ratio is used to evaluate the risk-adjusted performance of a mutual fund. Basically, this ratio tells an investor how much extra return he will receive on holding a risky asset. You can say Sharpe ratio is sharing risk-adjusted return. एक यूनिट का रिस्क लेकर कितना रिटर्न आपको मिला, ये शार्प रेशियो बताती है। HDFC का शार्प रेशियो है 0.41, SBI स्मॉल कैप शार्प रेशियो इज 0.50 एंड निप्पॉन इंडिया इज 0.29, L&T इज 0.30 एंड एक्सिस स्मॉल कैप शार्प रेशियो इज 0.66. So friends, according to Sharpe ratio, Axis small cap is the best small cap fund and generate better risk adjusted return. Now come to the second volatile factor, and this is standard deviation. I would like to clear all doubts about standard deviation. See example, if the portfolio XYZ has a standard deviation of 7% and average return, that is called mean return also, of 15%, it means that it has a tendency of deviating by 7% from its expected average return and may give return between 8% to 22%. Standard deviation is directly proportional to the volatility of a portfolio. Simple language में कहें तो स्टैंडर्ड डिविएशन रिटर्न के फ्लक्चुएशन को बताता है, और स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज्यादा होगा वो फंड उतना ही रिस्की और वोलाटाइल होगा। HDFC स्मॉल कैप
standard deviation is 16.9%, SBI small cap is 19.51, Nippon India small cap standard deviation is 19.11, L&T emerging business standard deviation is 17.18, and Axis small cap standard deviation is 13.91. After standard deviation, we can easily say Axis small cap fund is the lowest volatile and among these 5 small cap fund. Next volatile factor is mean return. Firstly, understand what is mean return and why it is necessary to check before investing in a fund. Mean return, generally in all mutual funds apps and even in YouTube video, you see the trailing return of a mutual fund like 1 month return, 3 month return, 6 month return, 1 year return, and 5 years return. So this is also called point to point return. But in this case, you can't be able to calculate the 2.5 years return of the fund. That is why I am generating or generally use mean return while review of a mutual fund. Mean return is also called average return. Mean return tells an investor how much expected return he will get by particular fund. फंड के पास्ट परफॉर्मेंस एंड रिस्क एबिलिटी को एनालाइज करके फ्यूचर में होने वाले एवरेज रिटर्न को बताती है मीन रिटर्न. HDFC mean return is 10.87%, SBI small cap is 14.06%, and Nippon India is 9.13%, and L&T emerging is 8.90%, and Axis small cap is 13.40. We can say SBI is the best small cap fund according to mean return. But keep in mind, फंड का सिलेक्शन केवल मीन रिटर्न से नहीं करना चाहिए. So before taking any decision, you have to justify modern portfolio statistics of this fund. Start with R squared. It is a factor which tells an investor how much correlation between particular fund and of its benchmark. कोई म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क से कितना कोरिलेशन करके चलता है, ये आर स्क्वायर्ड बतलाती है. HDFC स्मॉल कैप आर स्क्वायर्ड इज 86.93 एंड SBI स्मॉल कैप इज 86.89, निप्पॉन स्मॉल कैप इज 96.07% and L&T emerging is 94.29% and Axis small cap R squared is 78.57%. Next important point is alpha value. Alpha measures the difference between a fund actual return and its expected return. A positive alpha figure indicates the fund has performed better than its beta. Beta means market. Negative alpha indicate a fund has underperformed. अल्फा वैल्यू ही आपको ये बतलाती है कि फंड ने अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना ज्यादा या कम रिटर्न जनरेट करके दी है अपने इन्वेस्टर्स को. पॉजिटिव अल्फा बेटर परफॉर्म्ड एंड नेगेटिव अल्फा अंडर परफॉर्म्ड ऑफ फंड बतलाती है. HDFC स्मॉल कैप अल्फा वैल्यू इज 9.56, SBI स्मॉल कैप इज 10.31, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप इज 06.03, L&T emerging business fund is 5.60 and Axis small cap alpha value is 11.27. So friends, according to alpha, Axis small cap has the ability to generate maximum return than remaining 4 small caps. Next factor is beta value. Beta is the measure of volatility or systematic risk of a security or a portfolio compared to the market. The market has a beta of 1. A beta value of 1 indicates that the investment price will move in lockstep with market. A beta value less than 1 indicates that the investment will be less volatile than the market. Correspondingly, a beta value of more than 1 indicates that the investment's price will be more volatile than the market. For example, if a fund portfolio's beta is 1.2, it is theoretically 20% more volatile than the market.
मार्केट के वॉलेटाइल को एक माना गया है। अगर आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उस फंड का बीटा मोर देन 1 हुआ तो मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है वो म्यूचुअल फंड। 1 से कम हुआ तो वो अपने बेंचमार्क या मार्केट से कम वॉलेटाइल है। ये बतलाती है बीटा वैल्यू। HDFC स्मॉल कैप फंड बीटा वैल्यू इज 0.68, SBI स्मॉल कैप बीटा वैल्यू इज 0.89, Nippon India small cap is 0.92, L&T emerging is 0.82 and Axis small cap beta value is 0.53. So according to beta value, Axis small cap is the lowest volatile small cap fund among these 5 small cap fund. Now have a look and annual return of these fund. While you are looking return, keep in mind all factors which I told you, just like alpha, beta, standard deviation, so you can see the how much impact on return of these factors. रिटर्न को देखने के पहले आप जिस मेजर्स फैक्टर्स को मैं बताया हूं उसे अपने दिमाग में रखिए और देखिए कि अल्फा, बीटा, वैल्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना इम्पैक्ट डालता है रिटर्न पर। 2014 HDFC रिटर्न इज 52.59, SBI is 112.77, Nippon India is 93.30, L&T emerging is not available, Axis small cap is 86.50. In 2014, the winner is SBI. In 2015, HDFC 7.80%, SBI small cap is 22.29, Nippon India is 16.06, L&T is 13.02 and Axis is 10.92. So in 2015 again winner is SBI small cap. Now have a look on 2016. HDFC is 6.78, SBI small cap is 2.64, Nippon India is 6.75, L&T emerging is 11.06 and Axis is 5.14. In 2016, L&T emerging business fund is winner. And 2017, HDFC is 62.65, SBI is 80.44, Nippon India is 64.94 and L&T is 67.77 and Axis is 39.82. In 2017, again SBI is winner fund. And next is 2018. HDFC giving negative return minus 6.69, SBI also giving negative minus 18.64 and Nippon is also giving negative minus 15.69 and L&T is minus 12.94 and Axis is minus 7.93. 2018 में जब मार्केट डाउन हुआ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 डिजिट में नेगेटिव रिटर्न एक्सिस और HDFC ने दिया। अब इसके स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा वैल्यू और अल्फा वैल्यू को चेक कर लीजिए। देखना ये तीनों फंड बेटर हैं और SBI जैसे कि विनर रही है पिछले 3 साल और देखिए इसने डबल डिजिट में नेगेटिव रिटर्न दिया और इसका वोलेटाइल फैक्टर भी इन फंडों से ज्यादा है। ये रिटर्न ज्यादा अगर जनरेट करती है तो नेगेटिव रिटर्न भी उतना ही मिलेगा आपको। अगर आप ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं और रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं तो SBI इज गुड फॉर दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। और जो चाहते हैं कि मैं कम रिस्क लूं और मुझे एक कंसिस्टेंटली एक अच्छा रिटर्न भी चाहिए और मेरा जब डाउन हो तो ज्यादा मेरा फंड नीचे ना गिरे, स्मॉल कैप बहुत हाईली रिस्की होता है तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा फंड ना गिरे और थोड़ा कम गिरे जस्ट लाइक मिड कैप की तरह तो एक्सिस इज बेटर वन एंड HDFC सेकेंड बेटर वन। अब बात करते हैं 2019 जिसमें कि मार्केट बहुत वोलेटाइल हो गया, उसमें भी देखेंगे तो HDFC रिटर्न इज इन नेगेटिव माइनस 6.14, SBI 7.12, Nippon is negative return minus 2.59, L&T is minus 6.59 and Axis is 18.49। देखिए ये 2019 का रिटर्न अगर एक्सिस का देखेंगे तो लगेगा ही नहीं आपको कि मार्केट गिरी हुई है या फिर मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है। अब देखते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज टोटल एक्सपेंस रेशियो। दिस इज अ चार्जेस and these charges deduct from your investment amount for operating your fund।
तो फ्रेंड्स, आपके फंड को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे चार्जेस कट होते हैं, जिसे टोटल एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। HDFC टोटल एक्सपेंस रेशियो इज 0.70, SBI स्मॉल कैप इज 1.33%, निप्पॉन इंडिया इज 1.22%, L&T इमर्जिंग इज 1.28% एंड एक्सिस इज 1.55%। तो हाईली चार्जेस आपको पे करना पड़ता है अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप को सिलेक्ट करते हैं। और रिटर्न भी देखेंगे, इसमें बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है। जितना ज्यादा अच्छा मैनेज किया हुआ है, ऑपरेटिंग करने का चार्ज भी उतना ज्यादा इसमें है। और HDFC देखेंगे तो सबसे लोएस्ट आपसे टोटल एक्सपेंस रेशियो TER चार्ज करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फंड मैनेजर स्किल। सबसे पहले जानते हैं फंड मैनेजर कौन है। HDFC फंड मैनेजर इज मिस्टर चिराग, जो कि 25 जून 2014 से इस फंड को ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज SBI स्मॉल कैप, मिस्टर R श्रीनिवासन, 16 नवंबर 2013 से। बहुत ही साल हो गए इनको इस फंड को मैनेज करते हुए। तो आप कह सकते हैं कि अगर पास्ट में आपने इतना रिटर्न देखा है तो फ्यूचर में भी आपको ये रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि फंड मैनेजर वही है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप इज मिस्टर समीर, और इन्होंने इस फंड को 2 जनवरी 2017 से अपने अंडर लिया है। L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड मैनेजर इज मिस्टर SN लाहिरी, फंड को 12 मई 2014 से देख रहे हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि ये भी इस फंड में पिछले कई सालों से बने हुए हैं, तो इस फंड को अच्छी तरह ये जानते हैं। नेक्स्ट एक्सिस स्मॉल कैप इज मिस्टर अनुपम तिवारी, और ये अक्टूबर 2019 से इस फंड को संभाले हुए। अगर आपको मैनेजर के स्किल्स देखने हैं तो अल्फा को जरूर देखना चाहिए। इफ यू वांट टू सी द स्किल ऑफ मैनेजर्स, यू हैव टू सी अगेन द अल्फा वैल्यू ऑफ दिस फंड। बेटर अल्फा इज शोइंग बेटर मैनेजमेंट एंड बेटर रिटर्न एडजस्टेड। सो अगर आप देखना चाहते हैं मैनेजर्स के स्कूल को, तो पिछले कुछ जो मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन और अल्फा बीटा बताया उस पे फोकस कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ये मैनेजर्स कैसे वर्क कर रहे हैं कि उनका डेटा इतना अच्छा है। क्योंकि इस फंड में प्राय आप देखेंगे पिछले 3 सालों से ये मैनेजर्स अपॉइंटेड हैं, और पिछले 3 साल का डेटा मैंने कलेक्ट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि फंड मैनेजर ने कैसे इस फंड को मैनेज किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आने वाले वीडियो में मैं टॉप 5 मल्टी कैप फंड को सिलेक्ट करूंगा। आपको कमेंट्स करना है कि आपका कौन सा मल्टी कैप फंड सबसे ज्यादा पसंदीदा फंड है जो कि आप रिव्यू देखना चाहते हैं। तो प्लीज, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको अपडेट मिलता रहे। और एक खास सूचना, अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना जहां मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक अमेजिंग वीडियो के साथ।